Good morning, each and everyone. Today I am going to discuss trigonometry. Mainly, we will see the question related to based on application of trigonometry. So, discussing in this chapter, first of all, we will see what is Pythagoras theorem. But our first topic is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is applicable for only right angle triangle. किसके लिए है? Right angle triangle. Suppose we have a right triangle ABC. A B C right angle at 90 degree. ये क्या है? Right angle 90 degree. तो now this will be, suppose this is base, this is perpendicular, and this is height. Then what Pythagoras theorem states that h square will be equal to p square plus b square. Why I am discussing Pythagoras theorem? Because in finding the value of sin theta, cos theta, tan theta is very much related to this Pythagoras theorem. So, first of all, these values are known as trigonometric value. What? Trigonometric value. So now here in trigonometric values, we will find value different function. These are the function: sin function, cos function, tan function. We will find value at 0 degree, 30 degree, 40 degree, 45, 60 and 90. At 5 place we will find the value of trigonometric. Now coming on to first of all sin theta. Suppose you have given, suppose here we have a right triangle. So you will consider any angle. The triangle is given. Triangle is ABC. Now suppose we are considering theta 1. This is theta. Theta, what? Theta means angle. What is theta? Theta is angle. Now for this angle, suppose for this angle we have to find sin theta, cos theta, tan theta. So here sin theta will be perpendicular distance upon hypotenuse. What is the perpendicular distance? Sin theta is given as the perpendicular distance upon hypotenuse. So here sin theta will be AB upon AC. What? AB upon AC. Similarly, cos theta is given as base length upon hypotenuse. Here base will be BC upon AC. Now we will tan theta. Tan theta will be perpendicular length upon base length. So here AB upon BC. Now what we have taken here, AB equals to P, so P upon H. Here BC is B, so base upon H. Now here P upon B. So one thing remember you, P, H, B. So the first one will give the sin, second one will be give cos, and third one will be give tan. Now cosec theta
cosec theta is the reciprocal of sin theta. What? Cosec theta is the reciprocal of sin theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta, and cot theta is equals to reciprocal of tan theta. So from the figure, cosec will be equals to h upon p, sec theta will be h upon b, and cot theta will be b upon p. These are the trigonometric ratio. Here now we are going to discuss how to find the trigonometric ratio for angle 30. हम लोग 30 के लिए फाइंड करेंगे, देन 60, देन 45 और सभी के लिए हम फाइंड करेंगे. सो मूविंग ऑन दिस, फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसके लिए 30 डिग्री के लिए. अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 30 डिग्री, इसका कैसे फाइंड करेंगे. सपोज हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसका साइड लेंथ क्या होना चाहिए 2a, a b c. 2a ले लिया हमने, 2a ले लिया, ये 2 ले लिया. अब हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं. जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं मींस, चलो आई एम यूजिंग डिफरेंट मार्कर. ये लिए तो ये लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, दिस लेंथ विल बी a, दिस लेंथ विल बी a. नाउ दिस इज b. नाउ हियर AD विल बी अंडर रूट AB माइनस BD स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. कहां से आ गया पाइथागोरस थ्योरम. 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट 3a. सो व्हाट विल बी द लेंथ रूट 3a. ये हो गया. अब हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री. ये एंगल क्या होगा 60 है तो डिवाइड हो गया 30 में. किसमें 30 में. 30 में अब मान लो हम इसका एक पार्ट ड्रॉ कर देते हैं. मान लेते हैं ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री. ये हो जाएगा रूट 3a, रूट 3a हो गया. अब देखो रूट 3a ये हो जाएगा d है हमारा, ये a है, ये c है. dc कितना है a है और ये है 2 है. अब यहीं से हम 30 डिग्री फाइंड कर लेंगे. साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 30 की, उसके बाद tan 30 की, ये आ जाएगा. उसके बाद अब sin 30, sin 30 की वैल्यू कैसे आएगी परपेंडिकुलर p अपॉन h आना चाहिए. इसका p क्या होगा a, ये a हो गया, h क्या है 2a. तो sin 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2. cos 30 बेस क्या होगा, बेस हो गया रूट 3, तो रूट 3 ये आएगा b अपॉन h. तो ये क्या हो गया रूट 3a अपॉन 2a, रूट 3 अपॉन 2. tan 30 के लिए क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन रूट 3a, दैट विल बी 1/√3. ये हो गया
अब हम क्या करेंगे, अब हम tan 60 की बात करते हैं। क्या, sin 60 cos 60 tan 60। अब sin 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, p अपॉन एच साइन का, तो इसके लिए p क्या है, √3 अपॉन 2a, √3 अपॉन 2, ये हो गया। cos 60 के लिए बेस क्या है, a b अपॉन h, तो ये हो गया a अपॉन 2a 1 अपॉन 2। tan 60 के लिए क्या होगा, √3 अपॉन a, दैट विल बी √3। अब देखो हमारे पास साइन आ गया कि नहीं, साइन आ गया, तो इसका उल्टा होगा कोसेक। कोसेक 30 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 30, 1 अपॉन साइन 30 हो गया, तो 1 अपॉन 2 ये हो गया 2। कोसेक का क्या होगा, सेक 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 30, तो ये हो गया 1 अपॉन √3 अपॉन 2, 2 अपॉन √3। tan का क्या होगा, cot 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 30, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 अपॉन 1, दैट विल बी √3, ये हो गया। सिमिलरली हम लोग यहां पे करेंगे cosec 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन sin 60, जिसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन √3। sec 60 की आ जाएगी 2 cosec नहीं cot 60, cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √3। ये हो गया, हमने 60 का भी फाइंड कर लिया और 30 का भी फाइंड कर लिया। ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। अनदर वे आई विल एक्सप्लेन टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हो गया। अब उसके बाद हम करते हैं 45 के लिए। किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मींस टू साइड्स विल बी इक्वल। सपोज ए बी सी, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये ए ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये हो जाएगा √2 है। ये हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, साइन 45 आ जाएगा, a अपॉन √2 है, 1 अपॉन √2। cos 45 कितना आएगा, a अपॉन √2 है, 1 अपॉन √2। tan 45 क्या आ जाएगा, a अपॉन a, दैट विल बी 1। tan का उल्टा होता है cot 45 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 45, दैट विल बी 1। यहां से cosec 45 कितना होगा, 1 अपॉन साइन 45 √2। cosec 45 कितना होगा, 1 अपॉन cos 45, दैट विल बी √2। ये हो गया। ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस है एंगल फाइंड करने का। अब हम फाइंड करते हैं सिंपल और शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द एंगल। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमने अभी तक फाइंड किया है 30, 45, 60। अब हमें 0 को भी इंक्लूड करना है और 90 को। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर होगा और एंगल्स हमारा इस साइड होगा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45,
60 90 डिग्री। ये हो गया 0 30 45 60 90। ये हो गया। सबसे पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे साइन थीटा का। हमारा साइन थीटा का आ जाएगा, उसके बाद हम सभी का निकाल लेंगे। इसका प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4। क्या करो, नंबरिंग स्टार्ट कर दो कहां से, 0 1 2 3 4। अब इसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। क्या करो, स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखो 0/4 क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। ये हो गया। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2। ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/√2। ये हो गया। यहां पे आ जाएगा √3/2, यहां पे 1 आ जाएगा। तो जो मैंने यहां पे साइन थीटा के लिए जो रेट से लिखा है वो है हमारा साइन थीटा का वैल्यू। ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूं कॉस। ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब हम कोसेक के लिए लिखते हैं, कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा। क्योंकि एक हमारा फॉर्मूला है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ोगे तो वहां पे क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये होता है साइन 90 माइनस, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ोगे ना तो वहां पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका वैल्यू कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। तो उल्टा से लिखते हैं, जैसे 1 के बाद क्या है, √3/2। ये क्या आ जाएगा, 1/√2। उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टेन थीटा का। किसका, टेन थीटा। एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से हम निकाल रहे हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से है 0/1, यहां से हो जाएगा 1/2 √3/2। ये हो जाएगा 1/√2 1/√2। ये हो जाएगा √3/2/1/2। ये 1/0। तो मैं इसके लिए फिर रेड पेन का यूज कर रहा हूं टू राइट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। 0/1 0 1/2 √3/2। ये क्या आ जाएगा, 1/√3। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड केस है। क्या है, नॉट डिफाइंड केस है। ये हो गया। हमने टेन थीटा का फाइंड कर लिया। उसके बाद हम कॉट थीटा का फाइंड करते हैं। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। मींस कॉट थीटा के लिए हमारे पास यहां पे क्या आएगा, जस्ट टेन थीटा का उल्टा लिख दो, ND √3 1/√3 0। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा 1/1 का क्या वैल्यू आएगा, 1। ये हो जाएगा 2/√3 √2 2 0/1 यानी 1/0 not defined. You can take infinity or not defined. Now we will move to cosec. Cosec is just opposite of tan theta और ये sec का उल्टा लिख सकते हो, not defined
2 and 1. This is the table how we will find the trigonometric ratio. Now we will move to question and we will try to solve. Next we will see angle of elevation or angle of depression. This is important. Angle of elevation and angle of depression. एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हम देखेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में देखेंगे. मान लो हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट ये है, ये ऑब्जेक्ट है. अब हम क्या है यहाँ पे, तो यहां से हम देखेंगे अपनी आई से, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो ये जो हम यहां से, सपोज दिस इज आई, हम आई से देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, SIGST. और ये क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड लाइन ऑफ साइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ विजन. इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन. और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब मान लो कि इसी को अगर हम जस्ट ऑपोजिट कर दें, अब मान लो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, कहां है, ऑब्जेक्ट यहां पे है और आई हमारा यहां है. तो हम नीचे की तरफ देखेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हॉरिजॉन्टली हम चेंज कर देते हैं. चलो अब हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं. क्वेश्चन लिसन वेरी केयरफुली. ए मैन विशेस टू फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट. मीन्स एक फ्लैग पोस्ट है, उसका हाइट फाइंड करना है. सपोज प्रॉब्लम नंबर 1, सपोज आई एम टेकिंग फ्लैग पोस्ट एज AB. ये हमारा हो गया फ्लैग पोस्ट AB. एट ए पॉइंट दिस ही फाइंड्स द एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ टॉप ऑफ एंगल इज 45. यानी एक पॉइंट है, मान लो हमारा पॉइंट ग्राउंड पे ये है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ये हो गया. उसके बाद क्या हुआ, ऑन वॉकिंग 30 किलोमीटर टूवर्ड्स, नो, ये एंगल 45 है ABC. अब क्या बोला जा रहा है कि वो 30 मीटर वॉकिंग करने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट. हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड H करना है. ये हमें दिया हुआ है, ये कितना है, 30 मीटर. हम इसको मान लेते हैं H. क्या मान लिए, हम इसको मान लिए H. अब हमें मेनली 3 फॉर्मूला याद रखना है. पहला साइन थीटा क्या होता है, P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/V. ये 3 फॉर्मूला के अलावा हम इसमें एक भी फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं जा रहे हैं. तो हमें H फाइंड करना है. मीन्स हमारे पास ये और ये यूज कर रहे हैं, तो मेनली हम जब हम ये और ये यूज करेंगे तो हमें टेन थीटा फॉर्मूला की जरूरत होगी. तो tan 45 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे
tan 45 हो जाएगा AB अपॉन BC। AB कितना है? AB हो गया h, BC क्या है? 30 प्लस x। ये क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू h अपॉन 30 प्लस x, तो 30 प्लस x इक्वल्स टू h। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरा देखो, tan 60। tan 60 क्या आ जाएगा? h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 h अपॉन x, h इज इक्वल्स टू √3x। अब क्या गया? यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या आ जाएगा? 30 प्लस x इक्वल्स टू √3x। x को उधर लेके जाओ, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? √3x माइनस x। तो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 अपॉन 30। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 30 अपॉन √3 माइनस 1, इसको 30 अपॉन 0.732। ये आ जाएगा हमारा आंसर। और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बताओ? Solve it, you will get the value. Here I have written 3 questions. First, a boy is standing at some distance from a flag post. When he sees the flag, an angle of elevation is from 60. If the height of flag post is 30 degree, what is the distance of child from the flag post? Very easy question है। क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर ये 2 है, इसका सॉल्यूशन कि एक फ्लैग पोस्ट है। सपोज दिस इज द फ्लैग पोस्ट ए बी और एक चाइल्ड है यहां पे खड़ा है एट सी। अब क्या बोला गया है कि 30 फीट है, इसका हाइट कितना है? 30 फीट। और एंगल ऑफ एलिवेशन मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमें ये दोनों फाइंड करना है, तो हम tan 60 ले लेते हैं। tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BC √3 30 फीट अपॉन x। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 30 अपॉन √3 फीट। x इक्वल्स टू 10। अगर हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो रेशनलाइज करने के लिए 3 अपॉन √3, ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन 3 10 √3 की वैल्यू कितना होती है? 1.732। तो 17.32 मीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए फ्लैग पोस्ट, कीप एट ए फ्लैग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए फ्लैग। एक फ्लैग है, वो फ्लैग पोस्ट पे रखा हुआ है, उसका टॉप का जो फ्लैग का टॉप है और उसका जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है फ्रॉम 30 मीटर फ्रॉम द डिस्टेंस। मान लो हमारा क्या है कि ये है फ्लैग पोस्ट, ये हो गया फ्लैग पोस्ट। अब ब्लैक मार्कर वाला हमारा क्या है? फ्लैग है। तो A B C। अब एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ये कितना है? ये है 45 और ये है 60, नहीं ये है 30 और ये है 45। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग। हमें ये x फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ये x। मान लो हमारे पास क्या है? ये 30 मीटर है,
और ये मान लेते हम h है। तो क्या आएगा, फर्स्ट हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, यहां से हमारा h आ जाएगा। h की वैल्यू, कौन सा ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन AD, 1 अपॉन √3। AB कितना है हमें निकालना है, और ये है 30। तो क्या हो जाएगा, 30 इक्वल्स टू √3 AB, AB इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, दैट विल बी इक्वल्स टू tan √3। ये आ गया। अब हम क्या लेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ACD, ACD में क्या होगा, tan 45 फाइंड करते हैं। tan 45 क्या हो जाएगा, AC अपॉन AD, इसकी वैल्यू 1 आएगी। AC क्या होगा, h कितना है, tan √3 प्लस x अपॉन 30। यहां से क्या आ जाएगा 30, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17.32 प्लस x इक्वल्स टू 13 माइनस 17.32 मीटर। x की वैल्यू कितना आ जाएगी 12.68 मीटर। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 12.68 मीटर। अब मूविंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीड। क्वेश्चन नंबर 4 है, 300 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ क्लिफ ऑफ ए लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन थ्रू द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 30 डिग्री। यानी एक क्लिफ है, ये हमारा एक क्लिफ हो गया है कि नहीं, और 300 मीटर फ्रॉम द फुट, यानी ये इसका फुट हो गया, फुट से 300 मीटर दूर से, कितना 300 मीटर दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। मान लेते हम ये x हो गया ABC, तो tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल्स टू x अपॉन 300। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 x अपॉन 300, ये हो जाएगा 300 x √3, x इक्वल्स टू 300 अपॉन √3, ये आ जाएगा 100 √3, 100 मल्टीप्लाई 1.732, 173.2 मीटर। कितना आएगा 173.2 मीटर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल टावर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 50 √3 मीटर। कितना है 50 √3 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट टावर पे कितना है 30 डिग्री, यानी सेकंड टावर की हाइट ज्यादा है। तो सपोज लो हमारे पास एक टावर ये है, दूसरा टावर ये है, ये हो गया, इनकी बीच की डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, 50 √3 मीटर, ये हो गया। अब क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ये एंगल 30 डिग्री है। कितना है, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये भी एंगल 30 होगा। क्यों, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे। चलो अब हम इसका नाम देते हैं A B C D और ये है हमारा। अब हमारा क्या है कि इफ द हाइट ऑफ सेकेंड टावर, इसकी हाइट कितनी है 160 मीटर। कितना है 160 मीटर। तो हमें फाइंड करना है, ये ए बी फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी की वैल्यू। देखो अब हमारे पास क्या, अगर ये 50 √3 मीटर है तो 50 √3 हो जाएगा,
और ए बी किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर होगा, है कि नहीं। ए बी किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर। अगर हम डीई फाइंड कर लेते हैं तो डीसी में से डीई को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो हमारा डीई इजीली आ जाएगा, कैसे, इन ट्राइंगल डीएई, डीएई में क्या है, tan 30 इक्वल्स टू डीई अपॉन एई आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितना है, √3। अगर हम इसको मान लेते हैं x या डीई रहने देते हैं, डीई इक्वल्स टू 50√3, क्या आएगा हमारे पास, इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 50√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डीई √3 कैंसल, डीई इक्वल्स टू 50 मीटर। कितना आ गया, डीई 50 मीटर है, ये 50 मीटर है तो ईसी क्या होगा, ईसी इक्वल्स टू डीसी माइनस डीई, 160 माइनस 50 मीटर, 110 मीटर, यानी ईसी इक्वल्स टू एबी। जो फर्स्ट टावर की हाइट कितना होगा, 110 मीटर होगा। कितना होगा, फर्स्ट टावर का हाइट कितना होगा, 110 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज द 1/3 ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब माना गया है कि मान लो एक ये पोल है, इसका शैडो ये बन रहा है, ये शैडो बन गया, ये ए बी सी, हमें थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थीटा। अब देखते हैं यहां पे क्या बोला गया, द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स। अगर हम मान लेते हैं इसकी हाइट h है तो शैडो की हाइट क्या होगी, √3h, ये हो गया। अब हम यहां से क्या निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ये आ गया। अब tan थीटा क्या आ गया, h अपॉन h √3, h से कैंसल, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3 tan थीटा में किसका होता है, tan 30, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 is the length of a string between kite and a point is 102 meter if the string makes an angle alpha with the level ground, means कि एक काइट है, काइट मान लो यहाँ पे उड़ कर रहा है और उसका देखिए है पॉइंट, क्या है, ये पॉइंट है। ये स्ट्रिंग कितना है, 102 मीटर का है। कितना है, 102 मीटर का है। हाउ हाइट इज, हमें मान लो ये ए बी सी ट्राइंगल है, हमें ये वाला हाइट फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि जो AC है, AC इक्वल्स टू 102 मीटर है, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ अल्फा। कितना बना रहा है, अल्फा, और यहां पे दिया हुआ है tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 15/8। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम मान लेते हैं ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो वो हम ये आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा, 17। यानी यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 15, B की वैल्यू 8, H क्या हो जाएगा, P² प्लस B², H क्या हो जाएगा, 15² प्लस 8², that will be
225 प्लस 64 289 इक्वल्स टू 70। तो यहां से हम साइन अल्फा निकाल सकते हैं। साइन अल्फा हो जाएगा हमारा 15/17 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। हमारा साइन अल्फा आ गया। अब साइन अल्फा क्या होता है कि साइन अल्फा ईयर, यहाँ पे हमारा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 15/17। ए बी हमें निकालना है और ए सी हो गया 1/2। तो ए बी इक्वल्स टू 15 गुने 102/17, ये हो गया 6। ए बी की वैल्यू आ गई 90 मीटर। ए बी की वैल्यू कितना है 90 मीटर, ये आ गया। अब दूसरा क्या है, एक टावर इज 200 मीटर हाई। टावर कितना है 200 मीटर हाई है। तो मान लो ये एक टावर हो गया, ये हो गया 200√3 मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हम थीटा है और ये 200 मीटर है। ए बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा 200√3/200 कैंसल। tan थीटा इक्वल्स टू √3 कब आता है 60 डिग्री पे। सो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टावर आर अल्फा एंड अल्फा। एक बिल्डिंग है, मान लो सपोज हमारे पास बिल्डिंग है, ये हो गया हमारा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये हो गया बिल्डिंग। अब क्या है एक टावर है, ये मान लो टावर है। अब क्या बोला जाए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर आर अल्फा रिस्पेक्टिवली, टॉप एंड बॉटम, ये हो जाएगा अल्फा, ये क्या है अल्फा, और ये है बीटा, क्या है बीटा, और ये हमारा यहां पे दिया हुआ है, ये है एच, क्या है एच। तो हमें क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो मान लो अगर हम हाइट ऑफ टावर एज्यूम करते हैं एच, ये पूरा डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं ये है एच, कैपिटल एच। तो ये क्या होगा h माइनस एच, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर देंगे दिया। तो हम यहां पे सबसे पहले निकालते हैं tan अल्फा। tan अल्फा हम नेमिंग कर देते हैं a b c d e। tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी ए बी अपॉन बी ई। अगर हम बी निकाल लेते तो हमारा ये इजीली निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा tan अल्फा ए बी कितना है कैपिटल H माइनस एच अपॉन बी ई, ये हो गया। तो यहां से बी ई कितना हो जाएगा H माइनस अल्फा अपॉन tan अल्फा, ये आ गया। अब क्या, अब tan बीटा, tan बीटा क्या होगा AC अपॉन DC। tan अल्फा क्या आएगा AC अपॉन DC। तो ये हो जाएगा tan बीटा, AC क्या है H, और DC क्या होगा B इक्वल्स टू DC आ जाएगा, मीन्स H माइनस अल्फा अपॉन
टेन अल्फा। ये चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, टेन बीटा इक्वल्स टू एच टेन अल्फा माइनस एच। अब क्या आ जाएगा, टेन, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एच टेन बीटा माइनस स्मॉल एच टेन बीटा, और यहां पे आ जाएगा एच टेन अल्फा। कैपिटल एच है तो कैपिटल एच को एक साथ लेकर आ जाते हैं, क्या आ जाएगा, एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा इक्वल्स टू एच टेन बीटा। अब एच कॉमन ले लो, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू एच टेन बीटा। यहां पे एच की वैल्यू आ जाएगी एच टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये हो गया।